Hello students, this is a class for Vijay Part First and we are starting the play Merchant of Venice by William Shakespeare today. I am Dr. Anil Dadij, your teacher, and we will begin with the general introduction of the play. The Merchant of Venice is a 16th century play written by William Shakespeare in which a merchant in Venice, Italy, you can say, named Antonio, defaults on a large loan provided by a Jew moneylender, Shylock. So there is an angle of Christianity and Jewish people in the play. It is believed that this play was written between 1596 to 1599, right? If we go into the plot, summary of the plot, so I have cut out the play into five acts. The play is divided into five acts, and act wise, I will tell you the summary. In the first act, we meet with Antonio, and Antonio is a wealthy merchant of Venice, and he is surrounded by his friends, and the friends are Selenio, Salerio, Griciano, Lorenzo, etc., etc. And he is making a complaint to his friends that he is melancholy, he is sad, and he does not know the reason for his sadness and he cannot explain it why he is sad. His friends try to alleviate means come karna. So his friends try to alleviate his sad mood by jovial talks. They talk a lot, especially Griciano is one of the friends who talks a lot and he makes fun of Antonio's sadness in different terms. Antonio's best friend Bassanio arrives, and when Bassanio arrives, all the other characters leave the stage. Bassanio is desperately in need of money because he wants to marry Portia. Who is Portia? Portia is a wealthy and very beautiful lady who lives in Belmont. He asks Antonio, because Antonio is a wealthy merchant and he is one of his best friends, he asks for a loan in order to fulfill his dream to marry Portia. Antonio agrees, but he is unable to make the loan himself because all his money is invested and all his ships, because he is a naval merchant, all his ships are still at sea. Antonio suggests that Bassanio secure a loan and name Antonio as the loan's guarantor. Right? Now we come to another scene in Belmont where Portia lives. Portia expresses sadness over the terms of her late father's will. Portia's father is dead, he is no more, and he has written a will. Will कहते हैं वसीयत को. तो he has written a will and Portia can marry according to this will only. It is written that she must marry the man who chooses one of the three caskets as decided by the father, and one of these three caskets contains Portia's portrait in them, in one of them. द सूटर्स, ये बड़ा स्पेशल शब्द है सूटर. सूटर का मतलब होता है वन हु कम्स टू मैरी, वन हु कम्स विद द इंटेंशन टू मैरी समवन, तो वो सूटर्स कहलाते हैं. तो द सूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम टू मैरी पोर्शिया. Although the conditions are very difficult. What are the conditions? It is termed in the will, वसीयत में ऐसा लिखा है, that if the person who woos Portia, जो शादी करना चाहता है पोर्शिया से, if he fails in choosing the right casket, there are three caskets, one is golden, one is silver and one is lead. So if the person fails in choosing the right casket, he will swear not to reveal which casket he chose. वो बताएगा नहीं कि कौन सी कास्केट उसने चुनी थी. एंड ऑल्सो दैट ही विल नॉट मैरी एनी वन इन हिज लाइफ, ही विल रिमेन सिंगल इन हिज लाइफ, ही विल रिमेन बैचलर इन हिज लाइफ. सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टर्म्स.
A jovial discussion about Portia's opinion about the present suitors ensues between Portia and Nerissa. Nerissa is her favorite maidservant. She is a friend also, almost a friend. So, in a jovial discussion, Portia and Nerissa talk about the suitors that have come to marry Portia in this scene, and we come to know that none of the Portia's current suitors जो अभी आए हुए हैं बेलमोंट में, they are to her liking. मतलब Portia does not like any one of them, but however, she and Nerissa fondly remember a visit paid some time before by Bassanio. They talk about Bassanio and also that he is a deserving suitor. They make a comment, even Portia makes a comment that he is deserving fellow. Portia reveals her soft corner for Bassanio. Thus, we know that both of them, Portia as well as Bassanio, like each other. Whereas in Venice, we go back in Venice in the next scene. In Venice, Antonio and Bassanio approach Shylock. Shylock is the villain of the piece. He is a greedy and very cunning Jewish money lender. पैसा उधार देने वाला सूदखोर. They reach to him for a loan. Shylock nurses a long-standing grudge. Grudge कहते हैं दुश्मनी या you can say बुरी भावना, दुर्भावना against Antonio. Why? Because Antonio rails at Shylock. Rail मतलब मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना. तो Antonio rails at Shylock and other Jews. किस लिए? For their usury. Usury is actually money lending. The practice of loaning money at exorbitant rates. Exorbitant मतलब बहुत ऊंची दरों पे of interest. ब्याज की दरों पे. Antonio undermines their business. They have made it a business कि ब्याज पे पैसा देना. Antonio undermines their business also by offering interest free loans. और Antonio के पास कोई लोन लेने आता है तो he gives money without any interest. इस बात से भी शाइलॉक बहुत नाराज है. ऑन बीइंग कंप्लेंट, और जब शाइलॉक कंप्लेंट करता है एंटोनियो को इन सब बातों के लिए कि आप लोन तो लेने आ गए लेकिन आपने मेरे साथ ये किया है, लोन को आप अच्छा नहीं समझते, तो एंटोनियो रिफ्यूजेस टू अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर. माफ़ी नहीं मांगना चाहता एंटोनियो. स्टिल शाइलॉक एग्रीज एंड ऑफर्स टू लेंड बेसेनियो 3000 ड्यूकेट्स. ड्यूकेट्स वहाँ की करेंसी है, इटली की. तो 3000 ड्यूकेट्स देने को तैयार हो जाता है फॉर 3 months, 3 महीने के लिए. वो भी कैसे? विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना ब्याज के. ऐसा क्यों? अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. शाइलॉक एड्स हाउएवर दैट इफ द लोन गोज अनपेड, इफ एंटोनियो इज नॉट एबल टू पे द लोन, शाइलॉक विल बी एंटाइटल्ड टू टेक ए पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश. एंटोनियो के मांस का 1 पाउंड वो ले सकेगा शाइलॉक, काट सकेगा उसकी बॉडी से कहीं से भी. डिस्पाइट बेसेनियोज वार्निंग्स, बेसेनियो वार्न करता है एंटोनियो को कि ही इज़ ए ग्रीडी मैन, ही इज़ ए वेरी कनिंग मैन, ही इज़ ए वेरी क्रूअल मैन. तो भी एंटोनियो एग्रीज एंड द लोन इज टेकन. नाउ वी मूव इन टू द एक्ट 2. इन शाइलॉक्स ओन हाउस होल्ड, हिज सर्वेंट लॉन्सलॉट डिसाइड्स टू लीव शाइलॉक सर्विस. किस लिए? बिकॉज ही इज़ वेरी माइजर, बहुत कंजूस है इसलिए. एंड ही गोज़ टू वर्क फॉर बेसेनियो. एंड शाइलॉक्स डॉटर जेसिका, एक ही बेटी है शाइलॉक को, शाइलॉक की डॉटर जेसिका स्कीम्स टू एलोप विद एंटोनियोज फ्रेंड लॉरेंजो. एलोप विद का मतलब भाग जाना. तो घर से भागने की तैयारी है जेसिका की विद लॉरेंजो. लॉरेंजो इज एंटोनियोज फ्रेंड. That night the streets of Venice fill up with revelers. Revelers मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए जो निकले हैं, मुंह पे मास्क लगा के, डांस करते हुए, हाथ में मशालें पकड़े हुए, दे आर गोइंग. सो वेनिस की स्ट्रीट्स फुल हैं विद दीज रेवलर्स. एंड जेसिका एस्केप्स डिस्गाइज्ड, वो छद्म वेश धारण करती है. शी एस्केप्स, शी रन्स अवे विद लॉरेंजो बाई ड्रेसिंग एज हिज पेज. पेज मतलब उसका सर्वेंट बन के उसके साथ भाग जाती है. आफ्टर ए नाइट ऑफ सेलिब्रेशन, बेसेनियो एंड हिज फ्रेंड ग्रेशियानो लीव फॉर बेलमोंट.
वेयर बेसेनियो इंटेंड्स टू विन पोर्शियाज हैंड। वहाँ पे वो शादी के लिए निकलते हैं अगले दिन। इन बेलमोंट पोर्शिया वेलकम्स द प्रिंस ऑफ मोरक्को। उधर दूसरा सीन है, प्रिंस ऑफ मोरक्को कम्स हु हैज कम इन एन अटेम्प्ट टू चूज द राइट कास्केट टू मैरी पोर्शिया। The prince studies the inscriptions on the three caskets. There are written inscriptions on all the three caskets. तीनों पे कुछ कुछ लिखा है, and the written is very interesting. That is the puzzle. उसी के बेसिस पे आपको ये पहेली सॉल्व करनी है। तो the prince studies the inscriptions on the three caskets and chooses the golden one, which proves to be an incorrect choice. ये पजल वही है, उस पर लिखा है और उससे आपको लॉजिकल वे में सोचना और उसके बाद यू रीच टू ए कंक्लूजन. सो ही चूजेज द गोल्डन कास्केट एंड द चॉइस इज रॉन्ग. ही लीव्स फ्रॉम देयर हार्ट ब्रोकन. वेरेज इन वेनिस, हम वापस आते हैं वेनिस में, वहाँ पे शाइलॉक इज फ्यूरियस टू फाइंड दैट हिज डॉटर इज रन अवे, बट ही बिकम्स हैप्पी इन द फैक्ट दैट एंटोनियोज शिप्स आर रूमर्ड. अफवाह उड़ी है टू हैव बीन रैक्ड. रैक्ड मीन्स डिस्ट्रॉयड, समुद्र में उनका एक्सीडेंट हो गया. एंड दैट ही विल सून बिकम बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो जाएगा. एंटोनियोज लॉसेज विल मेक शाइलॉक टेक रिवेंज फ्रॉम हिम. उसको ऐसा लगता है. अब वापस हम बेलमोंट पहुंचते हैं एक सीन में वेयर इन द प्रिंस ऑफ एरेगन, एक और प्रिंस आते हैं एरेगन से. ही विजिट्स पोर्शिया. He also studies the caskets very carefully. He makes logical conclusion and he picks up the silver casket. But that casket is also incorrect. So now we know that Portia's photograph or portrait is lying in the lead casket. दो गलत हो गए, तीसरे में डेफिनेटली है ही. तो now we anticipate that Bassanio will choose the leaden casket. Now we enter into Act 3, Celerino and Selenio. They are two minor friends of Antonio. They head off to meet with Antonio. Just then, Tubal एक और Jew character है and he is friend of Shylock. He enters. Tubal announces that he could not find Jessica. शाइलॉक रेंट्स अगेंस्ट हिज डॉटर, गुस्से में बड़बड़ाता है बेटी के खिलाफ. ही इज स्पेशली एम्बिटर्ड, बहुत कड़वाहट उसके मन में आती है. कब? व्हेन ट्यूबाल रिपोर्ट्स दैट जेसिका हैज टेकन ए रिंग ऑल्सो गिवन टू शाइलॉक इन हिज बैचलर डेज बाई ए वुमन कोल्ड ले, प्रिज्यूमेबली जेसिकाज मदर. शायद जेसिका की माँ है, उसने वो अंगूठी उसको दी थी. वो अंगूठी उसने क्या किया है? शी हैज़ ट्रेडेड दैट रिंग फॉर ए मंकी. माँ की, बाप की वो स्पेशल जो अंगूठी थी, उससे उसने क्या खरीद लिया? एक बंदर खरीद लिया. तो इस बात से ही बिकम्स वेरी एंग्री. शाइलॉक्स स्पिरिट हाउएवर ब्राइटन, वो थोड़ा खुश होता है. किस बात से? व्हेन ट्यूबॉल रिपोर्ट्स दैट एंटोनियोज शिप्स हैव एक्चुअली बीन इन ट्रबल एंड दैट एंटोनियोज क्रेडिटर्स आर सर्टेन दैट एंटोनियो इज रूइंड. एंटोनियो रूइन हो चुका. रूइन मतलब बर्बाद हो जाना, ऐसा खबर है, पक्की खबर है. बेसेनियो अब पहुंचता है, हम दूसरे सीन पे. बेसेनियो अराइव्स एट पोर्शियाज स्टेट एंड दे डिक्लेयर देयर लव फॉर ईच अदर. बातों बातों में ऐसा पता चल जाता है हमको. डिस्पाइट पोर्शियाज रिक्वेस्ट दैट ही शुड वेट बिफोर चूजिंग. पोर्शिया उसको रिक्वेस्ट करती है कि ही शुड वेट बिफोर चूजिंग. वाई? बिकॉज पोर्शिया सोचती है कि कहीं ना कहीं शी विल हिंट, डायरेक्टली तो नहीं बता पाएगी बट हिंट करेगी शायद. बट बेसेनियो डिसाइड्स टू मेक हिज चॉइस इमीडिएटली एंड ही पिक्स द राइट कास्केट विच इज मेड ऑफ लेड. ही एंड पोर्शिया रिजॉइस, खुश होते हैं. एंड ग्रेशियानो जो उसका फ्रेंड है, ही ऑल्सो कन्फेसेस दैट ही इज फॉलन इन लव विद नेरिसा, जो पोर्शिया की फ्रेंड है, मेड है. द कपल्स डिसाइड ऑन ए डबल वेडिंग. राइट, वो करने ही वाले हैं कि अब डबल वेडिंग होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं. और उसी दौरान पोर्शिया गिव्स बेसेनियो ए रिंग एज ए टोकन ऑफ लव. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. ये जो रिंग है, इसके पीछे शेक्सपियर ने पूरा एक रिंग एपिसोड लिखा है तो इन दिस प्ले. तो पोर्शिया गिव्स बेसेनियो ए रिंग एज ए टोकन ऑफ लव
and makes him swear, कसम खिलाती है, that under no circumstances he will part with this ring. They are joined unexpectedly by Celerino, Lorenzo and Jessica. एकदम से Lorenzo Jessica के साथ Celerino आता है वहाँ पे. He has brought a letter from Antonio. The celebration is cut short by the news. उस लेटर में न्यूज है, और this celebration of marriage is cut short by the news that Antonio has indeed lost his ships and that he has forfeited means he has lost, लूज कर गया है. फॉरफिट मतलब लूज कर जाना. हिज बॉन्ड टू शाइलोक, शाइलोक को जो बॉन्ड लिखा था उसने, लीगल बॉन्ड जो था वो फॉरफिट कर गया है, हार गया है वो. एंटोनियोज लेटर थ्रू सेलेरिनो रिवील्स, वो बताता है दैट ही वांट्स टू मीट बेसेनियो इन हिज लास्ट मोमेंट्स. मरना तय है, तो इन लास्ट मोमेंट्स एंटोनियो वांट्स टू मीट बेसेनियो. कब? व्हेन शाइलोक शैल कट हिज फ्लैश इन द पेनल्टी. पोर्शिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती. वो इमीडिएटली, पोर्शिया आस्क्स बेसेनियो टू गो इमीडिएटली एंड डू वॉट एवर ही कैन टू सेव हिज लाइफ. शी गिव्स मनी, बैग फुल ऑफ मनी, कि जितना पैसा लगे बचाना चाहिए. बिकॉज बेसेनियो जिस तरह का डिस्क्रिप्शन एंटोनियो का देता है, पोर्शिया इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई दैट description, and she says that a friend of such description should be saved at any cost. किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए. पोर्शिया इज वेरी वेल्दी. अब पोर्शिया का सारा पैसा बेसेनियो का भी है, तो शी गिव्स द मनी. बेसेनियो एंड ग्रेशियानो immediately travel to Venice to try and save Antonio's life. After they leave, Portia tells Nerissa that they will also go to Venice disguised as men. Actually, they plan to become the advocate or the judge in the court so that they can save the life of Antonio. Act 4. यहाँ पे कोर्ट का ट्रायल चल रहा है. ड्यूक सीट पे है. शाइलोक इग्नोर्स द मैनी प्लीज टू स्पेयर एंटोनियोज लाइफ. सब लोग अपील करते हैं शाइलोक को, पैसा ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए. सारी अपील्स वो रिजेक्ट कर देता है. एंड ए ट्रायल इज कॉल्ड टू डिसाइड द मैटर. ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा. दैट इज कॉल्ड टू डिसाइड द मैटर. द ड्यूक ऑफ वेनिस, ड्यूक एक तरह से कह सकते हैं द हाइएस्ट अथॉरिटी इन वेनिस, who presides over the trial, announces that he has sent for a legal expert. And when he comes, this legal expert come, ये जो जज आता है, तो he turns out to be Portia disguised as a young man of law, and Nerissa also comes as his clerk, क्योंकि वो disguised है मैन के फॉर्म में. अब Portia asks Shylock to show mercy, but he remains inflexible, हिलता ही नहीं है, and insists that the pound of flesh is rightfully his. 1 pound का फ्लैश उसका है. Bassanio offers Shylock thrice the money due to him, but Shylock insists on collecting the bond as it is written, और बॉन्ड में लिखा है 1 pound of flesh. Portia examines the contract and finding it legally binding, she declares, और he declares, क्योंकि अब वो जज की फॉर्म में, he declares that Shylock is entitled to the merchant's flesh. Shylock ecstatically means excessively happy हो करके, he praises her wisdom, but as he is on the verge of collecting his due, जैसे ही वो काटने वाला है फ्लैश को, Portia reminds him. Portia कहती है रुको जू, he must do so without causing Antonio to bleed. एक बूंद भी खून की नहीं बहेगी. काट तो सकता है 1 पाउंड फ्लैश, लेकिन खून कहीं भी उसमें बॉन्ड में नहीं लिखा है. तो ही शुड नॉट ब्लीड, एंटोनियो शुड नॉट ब्लीड, एज द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एंटाइटल हिम टू एनी ब्लड. एक और बात कहता है जज, ये पोर्शिया कहती है कि 1 पाउंड से ज़्यादा या कम नहीं काटेगा. ही शुड कट ओनली 1 पाउंड, बिकॉज इफ ही कट्स लेस और मोर देन दैट, तो इट विल बी presumed, it will be supposed, ऐसा माना जाएगा, it will be believed that he was after the life of a Venetian citizen.
वेनिस के सिटीजन की जान लेना चाहता था, ऐसा माना जाएगा। ट्रैप्ड बाई दिस लॉजिक, और इस लॉजिक से शाइलॉक ट्रैप हो गया। शाइलॉक हेस्टिली एग्रीज टू टेक बेसेनियोज मनी इंस्टेड, कि 3 गुना पैसा दे दो। बट पोर्शिया इंसिस्ट दैट शाइलॉक टेक हिज बॉन्ड एज रिटन और नथिंग एट ऑल, या तो बॉन्ड लीजिए या कुछ भी नहीं मिलेगा। Portia informs Shylock that he is guilty of conspiring against the life of a Venetian citizen, which means he must turn over half of his property to the state and other half to the Antonio. चूंकि शाइलॉक उस देश का निवासी नहीं है, ही इज ए जू, तो अगर वो उस देश के नागरिक को, वेनेशियन सिटीजन को हार्म करने की कोशिश करता है, इफ़ ही इज आफ्टर द लाइफ ऑफ ए वेनेशियन सिटीजन, उसको आधी प्रॉपर्टी तो स्टेट को देनी पड़ेगी और आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को देनी पड़ेगी, जिसके खिलाफ उसने साजिश रची। ऐसा कानून वेनिस का है। द ड्यूक हाउएवर स्पेयर्स शाइलॉक्स लाइफ, जीवन बख्श देता है, एंड टेक्स ए फाइन इंस्टेड ऑफ शाइलॉक्स प्रॉपर्टी। एंटोनियो ऑल्सो फॉरगोज हिज हाफ ऑफ शाइलॉक्स वेल्थ ऑन 2 कंडीशंस। एंटोनियो भी उसको माफ़ कर देता है 2 शर्तों पे। शर्तें क्या है? फर्स्ट, शाइलॉक मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियन बन जाना चाहिए, अपना जेविश रिलीजन छोड़ देना चाहिए। एंड सेकंड, ही मस्ट विल द एंटायरिटी ऑफ हिज एस्टेट टू लोरेंजो एंड जेसिका अपॉन हिज डेथ, कि मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी की वसीयत वो लिखेगा, किसके लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ लोरेंजो एंड जेसिका, मतलब लोरेंजो को वो अपना दामाद स्वीकार करेगा, ही विल बी द सन इन लॉ। शाइलॉक एग्रीज एंड ही टेक्स हिज लीव। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है। बेसेनियो हु डज नॉट सी थ्रू पोर्शियाज डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब छद्मवेश, उसको वो देख नहीं पाता, एंड ही शोवर्स द यंग लो क्लर्क विद थैंक्स एंड इज इवेंचुअली परसुएडेड, वो उसको फोर्स करती है पोर्शिया टू गिव पोर्शिया द रिंग विद विच ही प्रॉमिस्ड नेवर टू पार्ट। वही अंगूठी जो पोर्शिया ने उसको दी थी कि यू विल नॉट पार्ट विद इट ऑन एनी कंडीशन, वही अंगूठी पोर्शिया उससे वापस ले लेती है एज ए रिवॉर्ड। ग्रेशियानो ऑल्सो गिव्स नेरिसा हु इज डिस्गाइड एज पोर्शियाज क्लर्क हिज रिंग, वो भी दे देता है, ग्रेशियानो भी दे देता है। नाउ वी एंटर इन टू द लास्ट एक्ट, एक्ट 5। The 2 young women return to Belmont, where they find Lorenzo and Jessica declaring their love to each other under the moonlight। ये एक बड़ा खूबसूरत सा सीन है, लव सीन है, जिसमें लोरेंजो एंड जेसिका एक दूसरे को बहुत अच्छे से अपना लव एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। When Bassanio and Greciano arrive the next day early in the morning, their wives accuse them of faithlessly giving their rings to another woman। वो दोनों अंगूठियाँ उनके हाथों में नहीं है, तो वो उसको ब्लेम करती है। लेकिन बिफोर द डिसेप्शन गोज टू फार, ये जो छद्मवेश पोर्शिया ने, नेरिसा ने धरा, ये कुछ लंबा खींचे या ये गुस्सा, ये नाराज़गी थोड़ी लंबी हो, हाउएवर पोर्शिया रिवील्स, वो रहस्य का उद्घाटन करती है, दैट शी वॉज इन फैक्ट द लो क्लर्क एंड बोथ शी एंड नेरिसा रिकनसाइल विद देयर हस्बैंड्स। वो रिकनसाइल करना मतलब सामंजस्य वापस हारमोनाइज करते हैं कि डोंट वरी, वी ओनली वर देयर एज द जज एंड द क्लर्क। लोरेंजो एंड जेसिका आर प्लीज टू लर्न ऑफ देयर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं वसीयत को, जो उसको उसमें मिलता है, उसको सुन करके दे आर वेरी हैप्पी। द इनहेरिटेंस फ्रॉम शाइलॉक एंड द जॉयफुल न्यूज इज शेयर्ड बाई पोर्शिया। एक और बड़ी अच्छी खबर पोर्शिया लेके आती है, दैट एंटोनियो शिप्स हैव इनफैक्ट मेड इट बैक सेफली। ये एंटोनियो के शिप्स वापस सेफ आ गए हैं। द ग्रुप सेलिब्रेट्स इट्स गुड फॉर्च्यून एंड द प्ले एंड्स एट दिस हैप्पी नोट। थैंक यू वेरी मच। That's all for today. We will talk about the characters tomorrow.